Good. So let's begin this, my friends. We were there into the second module where the sources of finance were started. In the sources of finance, the equity was extensively discussed. In equity, the pros, cons, as well as the features, characteristics of the equity capital from the company's perspective were covered. We had very extensive discussion in that. Then we moved to the cost of equity. How to find a cost for a company as far as the equity capital is concerned. There are various methods because equity shareholders are plenty in numbers, my friends. ऐसे 2-5 तो है नहीं कि आप बुला के पूछ लो भैया कितनी एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी. Yes, if it is a public company, the equity shareholders are not many. You may find it manually by doing some procedure, some calculation, asking their opinion too. लेकिन वो अगर बहुत बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे? बहुत बढ़ जाएंगे, तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? तो कुछ फाइनेंस एक्सपर्ट्स ने ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की और उन्होंने कुछ मेथड्स बनाए. क्या बनाए? मेथड्स बनाए. तो सबसे पहला मेथड जो हमने डिस्कस किया था बड़े लोग, वो था कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, विच वाज एंटायरली बेस्ड ऑन हाउ reactive the company is in comparison to the market. That was nothing but the beta, if you can recall it. Yes or no? But that was not the only method for the cost of equity, friends. There are various other methods too, more logical, more intellectual, with some logical reasoning too. Let's go to the second module, my friends. Second method, sorry, my friends. And that is dividend growth approach. Which approach? Dividend growth approach. चलो समझने की कोशिश करते हैं. एक्सेल फाइल ओपन कर दिया जाए. कोई को बोलेगा एक्सेल का सेशन नहीं है, फिर भी एक्सेल फाइल ओपन होती है. बेटा मेरा वर्किंग उधर होता है. इट्स मोर सॉर्ट ऑफ ए वर्क बोर्ड फॉर मी, यू नो. अच्छा, meanwhile I am just asking a question to you. What equity shareholders get from a company? डिविडेंड रिसीव करते हैं, ठीक है. An increment in the market price. Now if it is a publicly traded company, obviously you want to increase your value, and value is often denoted by the market price if it is a public limited company. लेकिन सर कोई कोई कंपनी में तो सिर्फ लोग डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन से ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग उसी के कारण तो जाने जाते हैं. अच्छा, when the companies are expanding in their initial few number of years of expansion, they generally opt not to pay the dividend to the equity shareholders because they want this money for their further expansion and maintenance in the future. अब आपने देखा होगा कि कई कंपनी आती है ना, तो शुरू में वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल इफ यू आर अनेबल टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स एट योर डिक्लाइनिंग स्टेज, एट दैट टाइम आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए. क्या कर देना चाहिए? डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए. That's what happens with the human psychology too. If you are unable to satisfy the expectation of another person, you should let him go. आपको दे देना चाहिए पैसे उनको, भैया तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुबारक हो, ले लो अपना डिविडेंड. हमें आपको, क्योंकि वो कंपनी में रहेंगे, आप डिक्लाइनिंग मोड पे हो, प्रोडक्ट्स आपके बंद होने वाला, आपको लग रहा है कि 5-10 साल के अंदर कंपनी बंद भी हो सकती है, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करोगे तो और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. और अगर और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में कंपनी की क्या लग जाएगी? वाट लग जाएगी. क्या लग जाएगी? वाट लग जाएगी. तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना बेटू. तो डिविडेंड देना कि ना देना, दिस इज एंटायरली सिचुएशनल इन नेचर, डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस, सिचुएशन टू सिचुएशन, सिनारियो टू सिनारियो. कभी कभी देना चाहिए, कभी कभी नहीं देना चाहिए. विल डिस्कस इट वेरी एक्सटेंसिवली व्हेन विल बी कवरिंग द डिविडेंड डिसीजन मॉड्यूल. बट राइट नाउ let's just understand that dividend is something which shareholders expect. Now dividend they expect on what? On their investment. Their investment is, say, the market price right now, which is denoted by P0. So sir, D1, which includes the growth of the current year, to be divided by the investment, say, which is the market price denoted by the P0. That is what the rate of return expectations you have from the company. But we are the people who have got some knowledge of financial management. हर शेयर होल्डर हर बार
सिर्फ 5-5%, मतलब एक फिक्स डिविडेंड एक्सपेक्ट करेगा क्या? उनको कुछ ना कुछ ग्रोथ चाहिए, है कि नहीं? अब ये ग्रोथ चाहिए तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज द 1% ऑफ द रिटर्न यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कंपनी, which is basically the dividend per share divided by the market price, plus G, plus लैपटॉप इज हाई ऑन। इतना वर्किंग करोगे तो बेचारा गांजा नहीं लेगा तो क्या लेगा? फिर से कोशिश करते हैं, नहीं। खत्म हो जा भाई। हाँ, फिर भी नहीं। लेट्स गो टू पीपीटी, अगर वहां पे शुरू हो जाए, नहीं, चलो कोई बात नहीं। So we have got another formula. Let me take you to that formula of the cost of equity, which is as per the second method. And here we have got the formula. This one, D1 divided by P0 plus G. Is it visible over there? Nice. Now another question, the prominent question is that, sir, how to find the growth rate? How some shareholder will come to know that what percentage of the growth they should expect? कितना ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करना भैया, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए भी एक लॉजिकल इक्वेशन बनाया इन लोगों ने। क्या बनाया? एक लॉजिकल इक्वेशन बनाया। उससे पहले अपन एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, आप सभी उस फॉर्मेट को जरा सा कॉपी कीजिएगा, क्योंकि आने वाले बहुत सारे कैलकुलेशंस में ये फॉर्मेट हमें काम आने वाला है। तो ऐसे रट लेने का है, क्या करने का है? रट लेने का है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं सेल्स से। We have got the sales amount first of all. Now it has started working. Let me try it over here. Started. So we have got the sales amount first of all here. From the sales amount, my friends, you reduce the variable cost. What do you reduce? Variable cost. So you get the contribution. Now variable cost are those costs which are not committed, which are not fixed in nature. वो कॉस्ट हम सिर्फ उसी समय पे करेंगे जिस समय पे हम प्रोडक्शन करेंगे। अगर प्रोडक्शन नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है भैया। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से भैया अपन सबसे पहले रिड्यूस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को। कौन से वाले कॉस्ट को? फिक्स्ड कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट कैन ऑल्सो बी सेड एज risk taken by the company, committed permanently, even without incurring the income. इनकम को रिसीव करने से पहले आपने कुछ कमिटमेंट देके रखा है। तो आपने कई बार सुना होगा, कोई रिलेटिव्स वगैरह कुछ शॉप्स वगैरह लगाते हैं, कुछ दुकान लगाते हैं, कुछ इंडस्ट्री लगाते हैं, तो पूछते हैं कि भैया तुमने लीवरेज कितना लिया? पूछते हैं कि नहीं पूछते? ये लीवरेज का मतलब ये होता है कि तुमने फिक्स्ड कमिटमेंट अभी से कितना ले लिया भैया। तुमने अपने जगह पे सैलरी में 2 लोगों को अपॉइंट कर दिया, फिक्स कमिटमेंट हो गया। तुम्हारा सेल्स हो कि ना हो, उनको सैलरी देनी है। रेंट के ऊपर प्रीमाइसिस ले ली, रेंट तो पे करना ही है। कोरोना आ जाए, पेंडेमिक आ जाए, या तो फिर कुछ भी हो जाए, हमें रेंट पे करना है, मतलब पे करना ही है। सो दैट इज द फिक्स्ड कमिटमेंट माय फ्रेंड्स। दैट्स गोना बी वेरी यूजफुल टू यू टू नो हाउ रिस्की द पोजीशन ऑफ द कंपनी इज in some future calculations to come. That's why this format is going to be very useful. So fixed cost excluding the interest, which is also called as the financial fixed cost. कोई बोलेगा क्यों? क्योंकि वो बाद में आ रहा है ना, इसलिए ये फॉर्मेट में बाद में आ रहा है, और मैं इसके लिए भी लॉजिक दूंगा कि क्यों वो बाद में आ रहा है। तो हमें मिलता है EBIT। क्या मिलता है? EBIT, which is also called as earning before interest and tax. Earning before interest and tax, भैया इसे ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। EBIT फाइनेंशियल एनालिसिस करने के समय कंपनी में बहुत काम आता है, इसलिए हमने EBIT को अलग से रखा। फाइनेंस कॉस्ट को हमने फिक्स्ड कॉस्ट में से रिड्यूस नहीं किया, कुछ फॉर्मूलाज इसके ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए। तो कंट्रीब्यूशन में से लेस किया फिक्स्ड कॉस्ट, भैया हमें मिला EBIT। EBIT में से सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमें मिलेगा EBT। क्या मिलेगा? EBT भैया। चलो EBT फाइंड कर लेते हैं। EBT स्टैंड्स फॉर द अर्निंग बिफोर टैक्स।
अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बोलेगी ए भाई साहब क्या हम धंधा हमारे लिए करते हो क्या, चल जल्दी से टैक्स निकाल, क्या निकाल, टैक्स निकाल. सो माइनस टैक्स. So if we reduce the tax, we get EAT or we get PAT. It can also be said as earning after tax or profit after tax. Bidu. Acha, from the profit after tax, the first right to get the dividend is of whom? Preference shareholder, क्योंकि उनका नाम ही क्या है, प्रेफरेंस है भैया. तो चलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले डिविडेंड दे देते हैं. आई एम रिड्यूसिंग द पीडी. पीडी स्टैंड्स फॉर द प्रेफरेंस डिविडेंड, नॉट दैट राहुल गांधी वाला पीडी. रिड्यूस दैट. सो वी गेट द अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. कोई लोग मेरी मिमिक्री कर रहे हैं. अर्निंग फॉर इक्विटी. It can also be said like earning available to equity shareholders. Please write it. कोई लोगों को लगता है कि वो आइंस्टाइन की आत्मा है. क्या है? आइंस्टाइन की आत्मा. उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे छप जाता है उनके दिमाग में, लेकिन ये उनका वहम है. क्या है? Some people are thinking they are smart, but only they think. अच्छा, on a lighter note, huh? Now, from the earnings available to the equity, company may pay the dividend, company may not pay the dividend. Yes or no? Company कोई obliged तो है नहीं कि उनको dividend pay करना मतलब करना ही है. That's what we saw over there in the features as well, that company is not obliged to pay the dividend to the equity shareholders, right? Even if there is a profit. तो भैया जो पैसा कंपनी डिविडेंड पे करती है ना, उसे हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो. So let's divide first of all this earning for equity with the number of equity shares. Number of equity shares. So you get EPS, which stands for earning per share. चलो अर्निंग पर शेयर आया है, समझ लो 10 रुपए का. कितने रुपए का? 10 रुपए का. एक शेयर पे आपका अर्निंग पूरे कंपनी का 10 रुपए हो रहा है. इसमें से भैया अगर आपने 6 रुपए डिविडेंड पे कर दिया, कितने रुपए? 6 रुपए. तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा? कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा कैलकुलेशन नहीं है, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है. कितना परसेंटेज? 3 और इन अदर वर्ड 60%. यस और नो? तो भैया दिस इज कॉल्ड एज द डीपी रेशियो, नॉट द डिस्प्ले पिक्चर रेशियो. कोई लोग इंस्टाग्राम में देखेंगे डीपी रेशियो है. इट्स डिस्प्ले नहीं, कौन सा? Dividend payout ratio, which is 60%, 6 divided by 10. And remaining money which company opts not to distribute to the equity shareholders, they want to keep it for the various purposes. They want to further expand their business. किसी और के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें तो अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है भैया, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है. तो हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. अगर फ्यूचर में मशीनरी परचेस करनी हुई, इन्वेस्टमेंट करना हुआ, तो हमारा पैसा हमें उस समय पे काम लग जाएगा. और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. फाइनेंशियल सिचुएशन उन्हें अच्छी दिखानी हो, फाइनेंशियल रेशियोज अच्छे दिखाने हो. जिन कंपनीज के रिजर्व्स एंड सरप्लसेस अच्छे होते हैं, उनके फाइनेंशियल रेशियोज, नेटवर्थ रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टू इन्वेस्टमेंट रेशियो, ये सब भी अच्छे लगते हैं. तो भैया बाकी का जितना भी रह गया ना, उसे हम कहते हैं रिटेंशन रेशियो. क्या कहते हैं? रिटेंशन रेशियो. ये रिटेंशन का स्पेलिंग क्या होता है? ई होता है ना. एक लड़की ने मेरे, हाँ मैंने ई बोला था, वो बोल रहे थे कि ए आ रहा है, रिटेंशन रेशियो. फिर मैंने उसकी भी नहीं सुनी, मेरी भी नहीं सुनी, मैंने है ना ऐसा लिख दिया था डॉक्टर वाली भाषा में. अच्छा, तो बाकी हो गया हमारा 40%. So the formula we can derive for this is 1 minus DP ratio is basically the retention ratio, RR. ये तो और अच्छा हो गया ना, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है. अब ये राम कहानी सर आपने क्यों की? क्योंकि सास की कभी बहू नहीं थी, लेकिन हमारे लिए कुछ और रीजंस थे. ये राम कहानी हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कुछ ग्रोथ को एक्सपेक्ट करते हैं, और उनका जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है ना, वो रिटेंशन रेशियो पे डिपेंडेंट रहता है. क्यों? समझाने वाला हूं बेड़ू. अच्छा, फिर से वो फॉर्मूला बताइए. कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल.
was D1 divided by P0. D, why I'm writing D1? Because it includes the growth of the current year too. आपने जो लास्ट ईयर का डिविडेंड पे किया है ना, it can be called as the D0. You expect the growth of the current year. That's why I'm writing the D1 in this case. Divided by the P0, which was the investment for you last year, plus G. अब ये G का जो फॉर्मूला है ना, वो कुछ ऐसा आता है. G equals to retention ratio multiplied by ROI. ROI stands for the return on investment. बिडू माइनस नहीं था, प्लस था बेटे. मेरे पीडीएफ में माइनस था. ये माइनस है कि प्लस है? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, आंखों में आंखें डालकर दगा करता है. अच्छा, return on investment is basically the return which company has got on its investments. Try to understand. अब ये जो EPS है ना बेटा, अर्निंग पर शेयर, इसके पूरे के ऊपर हक बनता है इक्विटी शेयर होल्डर का. लेकिन तुम उस बेचारों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, तो खुद उनका पैसा तुम अपने पास रख लेते हो. जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वो पैसा तुमने अपने पास रख लिया, उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग. यस और नो? रिजर्व्स एंड सरप्लस इज ट्रांसफर्ड. अब वो लोग बोलेंगे मेरा पैसा, एक तो चोरी और सीना चोरी. मेरा पैसा जो तुम खुद अपने पास रखते हो, भैया तुम उसके ऊपर जो रिटर्न ऑन करते हो ना, उतना मुझे ग्रोथ रेट दे दो डिविडेंड में. मुझे और ज्यादा ग्रोथ रेट की आवश्यकता नहीं है. जितना पैसा तुम मेरा अपने पास रखते हो, which is the retention ratio on that, what earning you will have in terms of return on investment, that is what the expectations I have for the growth rate. लॉजिकल भी है ना. ईपीएस के ऊपर पूरे के ऊपर हक बनता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का. अर्निंग पर शेयर कंपनी बोलेगी कि हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें तो एक्सपांशन के लिए चाहिए, तो कोई बात नहीं, रखो एक्सपांशन के लिए. लेकिन एक्सपांशन करोगे तो कहीं पे इन्वेस्ट तो करोगे. इन्वेस्टमेंट्स में करोगे, फिक्स्ड असेट्स में करोगे, अपने बिजनेस में लगाओगे, करंट असेट्स में लगाओगे, स्टॉक्स परचेस करोगे, कुछ भी करोगे. आप पैसे को आइडल रखने वाला तो है नहीं. और अगर बैंक में भी रखते हैं तो आजकल तो करंट अकाउंट में भी फ्लेक्सिबल डिपॉजिट्स की सिस्टम आ गई है. ज्यादा पैसा जो रहता है वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है. कुछ ना कुछ परसेंटेज रिटर्न आपको उधर भी मिलता ही है. तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है ना, तुम उसके ऊपर कितना अर्न करते हो, बस हमारा पैसा तुमने अपने पास रखा, तुम उसके ऊपर कितना रिटर्न अर्न करते हो, यही हमारी ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशंस है. दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ROI एज द फॉर्मूला फॉर द ग्रोथ रेट. जो अभी भी कुछ शंका की नजर से देख रहे हैं, हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनको और क्लैरिटी आ जाएगी. क्या आ जाएगी? और क्लैरिटी आ जाएगी. Some chintu girls are hiding behind the gigantic boys over there. I don't know why. Okay. सर के कमेंट्स को भी दिल पे नहीं लेने का. कहाँ नहीं लेने का? दिल पे नहीं लेने का. ये साइड होता है, दिल पे नहीं लेने का. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. वी वर देयर इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, उसी के अंदर इसको एक काम करते हैं, नीचे कॉपी करके उसका डिमोशन कर देते हैं. क्या करते हैं? उनकी अधोगति कर देते हैं. ऊपर से बेचारा नीचे आ रहा है, तो अधोगति हुई कि नहीं हुई? ये कितना मार्किंग्स वगैरह करके रखा है, जल्दी से हटा दीजिए. चलो हटा देते हैं. तो बोलेगा पहले करके आते हो, तो तुम तो बहुत मालूम है मुझे, बहुत पहले से करके आते हो हर कोई चीजें. फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ गोपी बहू लिमिटेड. कुकर में से चने निकालने वाली, लैपटॉप को धोने वाली गोपी बहू बेचारी, लेकिन भोली थी. हाईली सेंसिटिव स्टॉक थी. नहीं, बीटा भी देखो 1.8 आ रहा था उनका. राशि थी ना, वो शाणी थी. By using the CAPM approach and by using the dividend yield approach, we are supposed to find the cost of equity. Earnings of the company available is how much? 40 lakhs.
Number of shares are 3,50,000. Dividend per share distributed by the company or to be distributed by the company is 7.5 rupees. Return on investment is 12%. Market price of the share is 140 rupees. Return on risk-free government bonds is 9%. बीटा रिटर्न फ्रॉम मार्केट ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत तो हमें CAPM वाले मॉडल में थी. ये वाला तो हमारा दूसरा मॉडल है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. चलो लिख डालते हैं फॉर्मूला K इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G. इस कंपनी ने डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 7.5. वैसा का वैसा सीधा उधर चिपका डालते हैं. फेविकॉल की एडवर्टीजमेंट नहीं चल रही है, 7.5 उधर लिख डालते हैं. अच्छा P0 भैया, P0 मतलब कि मार्केट प्राइस कितना है? 140. लिख डाल, चल बिल्डर लिख डाल उधर, चिल मार, कोई टेंशन लेने की जरूरत. इधर ग्रोथ रेट दिया हुआ नहीं है, लेकिन फाइंड तो कर सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से. अब भी जो हमने डिराइव किया कौन सा था फॉर्मूला, बता दे चल बिड़ो. अब भैया 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो, राइट. अब डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारे पास है नहीं है, लेकिन फाइंड तो कर सकते कि नहीं कर सकते? तो फाइंड कर सकते भैया. सबसे पहले हमें जो डिटेल दी हुई है ना, वो अर्निंग अवेलेबल टू द कंपनी है. क्या है? अर्निंग अवेलेबल टू द कंपनी. तो वर्किंग नोट नंबर 1 टू फाइंड द रिटेंशन रेशियो. कोई लोगों को अपने फैकल्टी के नाम यहाँ पे याद आएंगे, लेकिन वो रिटेंशन रेशियो है. अर्निंग फॉर कंपनी ₹40 लाख. चल बेड़ो जाल उधर लिख डाल 40 लाख. अर्निंग फॉर कंपनी मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑलरेडी हमने पैसा दे दिया बेटा, इसीलिए तो अर्निंग फॉर. अच्छा अगर नहीं भी दिया है तो प्रेफरेंस शेयर का कोई डिविडेंड का हमें डिटेल्स भी दिया हुआ नहीं, तो नहीं होंगे प्रेफरेंस शेयर. ऐसा थोड़ी ना जरूरी है कि रखने ही है उनको. ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है ना, वो कैसे होते हैं मालूम है? वो जल कुकड़ी बहनों की तरह. कैसे होते हैं? जल कुकड़ी बहनों की तरह. I was watching a TV at one point of time, and then my sister was also at the same time wants to watch some this serial dramas, you know, of Ekta Kapoor. मुझे बहुत इरिटेट हो रहा था. मेरा क्या है यार, क्या है? दिस इज सीरियसली इंसल्ट ऑफ माई इंटेलेक्ट. ऐसी चीजें मैं देखूंगा क्या? अब हम दोनों झगड़ रहे थे. क्या कर रहे थे? झगड़ रहे थे. पीछे से पापा आए, वो बोल रहे कि बहुत इरिटेट कर रहे हो, किसी को सोने नहीं दे रहे हो. उन्होंने आके टीवी को बंद कर दिया. क्या कर दिया? बंद कर दिया. तो हम झगड़ रहे थे रिमोट कंट्रोल के लिए. वो बोले कि मैं रिमोट कंट्रोल रखूंगी, मैं बोल रहा था कि मैं रिमोट कंट्रोल रखूंगा. अब हम दोनों गए, पापा ने कर दिया बंद. अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं बोला अब तेरे को प्रॉब्लम क्यों नहीं है? तो बोला अगर टीवी चालू होगा तो रिमोट कंट्रोल मेरे पास होगा. तो अगर टीवी बंद है तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीवी चालू होगा तो रिमोट कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए. तो इक्विटी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये जल कुकड़ी बहनों की तरह होते हैं. वो बोलते हैं कि आप है ना किसी को डिविडेंड ना पे करो ना तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इक्विटी को दिया तो उससे पहले किसको देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा. बोलो वैसे करते हैं ये लोग, लेकिन इसमें तो वो है नहीं. तो अच्छा, अर्निंग फॉर इक्विटी टू बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स 3,50,000. 11.4285. There comes the EPS, earning per share. But not the entire earning per share is distributed, right? The amount of dividend distributed is different, given to you over there. Check it out. कोई बोले कि ओवर एक्साइड इतना क्यों हो रहे हो? सॉरी, कितना है डिविडेंड पर शेयर? 7.5. डिविडेंड 7.5 है. तो अब डीपी रेशियो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? है क्या नहीं? चल चल फाइंड कर दे. चल डीपी रेशियो इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय EPS
multiplied by 100 if you want the answer in percentage. So that's gonna be 7.5 divided by 11.4285 multiplied by 100. What do we get in percentage, friend? 65.6254%. 65.6254. 6254. Thank you so much. लेकिन हमारी अधूरी कहानी डीपी रेशियो पे खत्म नहीं होती ना भैया, हमें तो रिटेंशन रेशियो चाहिए, यस और नो? तो रिटेंशन रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस डीपी रेशियो बड़ू, तो इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको डेसिमल में लिखते हैं तो ऐसा कुछ लिख पाएंगे 0.656254। कितना आता है बड़ू? चल बता दे रिटेंशन रेशियो। 34.3746. 3437 can also be written like 34.37 परसेंटेज। लेकिन हमारी अधूरी, अभी तो फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, वो कितना करना पड़ेगा सर? इतने 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए तो आपने हमारा चेन ले लिया, वो चेन नहीं, चेन ले लिया। तो वी हैव गॉट ग्रोथ इक्वल्स टू आर आर मल्टीप्लाइड बाय आर ओ आई। आर आर मिला अपना को 0.3437। आर ओ आई कितना है बड़ू? आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 12%, राइट? तो 12% को डेसिमल में 0.12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। कंप्यूटर जी बहुत राइट आंसर है, ताला लगा दिया जाए। 0.412, so which can also be written like 4.12%. So my friends, equity shareholders will tell you to grow their dividend by 4.12% over and above the last year's dividend. So now the KE can be found. चलो KE में जाके रिप्लेस कर देते हैं। इसका आंसर आता है 0.0412, राइट? सॉल्व करते हैं 7.5 डिवाइडेड बाय 140, 0.0535। कोई लोगों के आवाज एकदम बड़े होते हैं, लास्ट वाली बेंच से भी इधर एकदम क्लियर सुनाई देता है, और कोई लोग इधर से बोलते हैं तो भी मेरे को सुनाई नहीं देता। 0.0412, so final answer will be 0. That means the equity shareholders should expect 9.47% return from this company. That means for the company, the cost of equity is 9.47% as per the dividend growth model. Is it clear? एकदम क्लियर है? आगे बढ़ो। चलो, may I have a confirmation from online students as well? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेचारे है ना, फोमो जोन में चले जाएंगे। कौन से जोन में? फोमो जोन में। हमें तो पूछ ही नहीं रहा, तो पूछ रहा हूँ ना बेटा आपको भी। Okay. Let's go to another method. Which is in quite proximity to the first method we had done for the capital asset pricing model. जिनको नहीं समझ में आया, वो अगर चिंकी है तो ये मिंकी है, बहुत ही नजदीक वाली मेथड है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, छोटा सा मॉडिफिकेशन आता है। क्या आता है? छोटा सा मॉडिफिकेशन। तो भैया CAPM मेथड के हिसाब से कुछ ऐसा फॉर्मूला लग रहा था, समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ था, KE इक्वल्स टू RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF। लेकिन ये RF का कोई नाम नहीं था, ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। कौन सी वाली सिक्योरिटी को मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी समझूं? ऐसा कोई क्लियर कट गाइडेंस CAPM के अंदर दिया हुआ नहीं था भैया।
दोस्ती थी लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। तो दूसरी वाली मेथड ने दोस्ती का नाम दे दिया आप यार। वो बोल रहे ये जो रिस्क फ्री रेट है ना और कोई नहीं है, उसके ऊपर से घूंघट निकालो तो ये है यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये क्या है? यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यील्ड माने के रिटर्न, गवर्नमेंट बॉन्ड्स माने के द बॉन्ड्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट or the state government or any institution and authority owned by fully either the state government or central government or partly owned by state government or central government or by both। सर इतना टेक्निकल डेफिनेशन भैया को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की उनकी कोई कंपनी ये जो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं ना उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सर ये बॉन्ड क्यों इश्यू करते हैं? बहुत सारे रीजंस होते हैं ना उनके। तो अपनी गवर्नमेंट है ना हर बार डेफिसिट में ही चलती है। कहाँ पे चलती है? डेफिसिट में। तुम इनकम टैक्स का कलेक्शन इकट्ठा कर दो, तुम जीएसटी का कलेक्शन इकट्ठा कर दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस के सबके कलेक्शंस मिला दो, लेकिन फिर भी हमारे खर्चे है ना वो उन सबसे ज्यादा ही होते हैं। हम डेफिसिट में रहते हैं। आता रहा है ट्रेंड, आता रहा है, तो ये डेफिसिट में रहते हैं। खर्चा आपने कमिट कर दिया है, डिफेंस में इतना, रेलवे में इतना, इसको इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना देना है, सीनियर सिटीजन की स्कीम के लिए इतना देना है, बजट बार पाड़ते हैं बेचारे। और इलेक्शन नजदीक आता है तो और डेफिसिट में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो बहुत योजनाएं बाहर पड़नी पड़ती है उस समय पे। तो गवर्नमेंट है ना फिर अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इनिशिएट कर दिए उसके लिए पैसे कहाँ से निकालेगी? नॉर्मल पब्लिक के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, कुछ कंट्रीब्यूट कर दे, कुछ कंट्रीब्यूट कर दे, तब जाके ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। सो इट्स बेसिकली द लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। बट इना कटके तुम पब्लिक के पास जाओ और बताओ कि ला ए भैया इधर आ 10 करोड़ रुपए दे दे, वो बोलेगा क्या 10 करोड़ रुपए दे दे? अब चाय पीने के लिए भी 10 रुपए उससे लिए और तो 10 करोड़ रुपए की देने की बात करता है। तो पब्लिक के पास से लोन लेनी है तो आपको कटके में लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? कटके में लेनी पड़ेगी। तो भैया अगर 10 करोड़ रुपए उनको चाहिए और तो वो कटके इश्यू करेंगे, उसके समझ लो 1 करोड़। कितने? 1 करोड़। मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी 1 करोड़। Then per bond 10 rupee will be a price. At that price the bond will be issued among the normal public. You may subscribe to those bonds by looking at your by going through your net banking portal। बैंक में राइट हैंड साइड पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो भी इश्यू होते हैं, कई बार आपके बैंक में भी आपको डिटेल्स दिया हुआ रहता है। आपके डीमेट अकाउंट के अंदर भी बहुत सारी बार आपको डिटेल्स नोटिफिकेशंस आते हैं। समझ लो आपने एंजल ब्रोकिंग में खोल के रखा है तो आपके एंजल ब्रोकिंग की साइट के ऊपर भी नोटिफिकेशंस आते हैं कि गवर्नमेंट ये बॉन्ड के साथ आ रही है, उसमें इन्वेस्ट करने की प्रोसीजर भी वहां पे लिखी हुई होती है। चलो उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो बोल रहे कि यार रिस्क फ्री सिक्योरिटी है ना, उसका कुछ नाम दे दो, क्योंकि फिर तुम रिस्क फ्री तो कुछ को किसी को भी ले लोगे। तो वो रिस्क फ्री है वो कौन है? गवर्नमेंट बॉन्ड है, क्योंकि वो कभी भी बैंकरप्ट नहीं होगी। कभी सुना है गवर्नमेंट ने सुबह उठ के बोल दिया भाई पैसा नहीं है चल निकल? गवर्नमेंट बोलती है ऐसे? कहीं ना कहीं से बेचारी इंतजाम करेगी। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी की जगह पे अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड लिख देंगे तो वो हो जाएगा दूसरा मेथड। तो मैंने बताया था ना वो चिंकी हुई तो ये क्या हो गई? मिंकी हो गई। सो के इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड प्लस बीटा, RM will remain RM as it is minus long term bond yield. So that becomes the bond yield plus risk premium approach. लिख देंगे बेटा? लिख देंगे ना? ओके चलो यहां तक क्लियरिटी है फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। इज इट क्लियर टिल नाउ ऑल द स्टूडेंट्स? Yes, sir. The number of students present is directly proportional to the time. जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है वैसे अटेंडेंस भी बढ़ती है। ये वाला आगे बढ़ू। आगे बढ़ू, थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट को ब्रेक करूं। This peace shouldn't be eternal in nature. You know, we don't want to rest in peace.
So let's break this piece now. Okay, so we have got the fourth model now, which is the last model for the finding the cost of equity. अब ये मॉडल है ना, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं. This is quite similar to the dividend yield model which just now we have seen, dividend growth model. अब इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना बेटा, वो क्या बोलेंगे मालूम है? ये तुम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मुझे करो कि ना करो, क्या फर्क पड़ता है? वो पैसा अल्टीमेटली तो किसका है? मेरा. क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही तो क्या होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं. तेरी मेरी क्या है सगाई, हम दोनों है भाई भाई, हिंदी चीनी, और वो हम के दोकलाम करते हैं. जाने दो. वो बोलते हैं कि भैया आपको है ना डिविडेंड हम पे करो कि ना करो, अगर तुम डिविडेंड पे ना भी करो तो भी वो पैसा आपके पास रहेगा, तो आप उस पैसे को कोई उड़ाने वाले तो हो नहीं, क्योंकि आपके ऊपर हमने ऑलरेडी रेगुलेटरी कंट्रोल्स रखे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट भी रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करके रखे हैं, और हम कभी भी जाए तो तुमसे पूछ भी सकते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है. तो आप पैसे को उड़ाओगे तो नहीं, आपके पास फाइनेंस के एक्सपर्ट्स पड़े हुए हैं, आप उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, कोई बात नहीं, बिजनेस में लगाओगे, पैसा रखो. मेरे लिए ये डिविडेंड क्या है, रिटेंशन रेशियो क्या है, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो है, ये कुछ मैटर ही नहीं करता. मेरे लिए तो सिर्फ अर्निंग मैटर करता है. क्या मैटर करता है? अर्निंग मैटर करता है. तो ये झंझट में गिरने की जरूरत ही नहीं है कि डिविडेंड कितना है, रिटेंशन रेशियो कितना है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, और ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशंस कितनी है. मुझे सिर्फ एक्सपेक्टेड ईपीएस चाहिए बस, अर्निंग पर शेयर. डिविडेंड मुझे दो कि ना दो, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही. हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए. दुष्यंत कुमार की, वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट पोएट वी हैड, यू नो. I must recommend you should refer that poem. तो मेरे पास नहीं तो तेरे पास सही, हो कहीं भी पैसा, लेकिन पैसा होना चाहिए. So we have got another formula which is expected EPS divided by pre-zero multiplied by 100. So it certainly eliminates the calculations of the retention ratio plus dividend payout or any sort of a thing. Basically, expectations of the shareholders are how much earning you are doing, irrespective of whatever the dividend payout ratio you have. So EPS divided by P0 multiplied by 100, that is called as the earning price ratio approach. क्लियर है? तो चारों मेथड इक्विटी के एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, एकदम पक्का. चलो, thank you so much. May I have the confirmation from online students as well that it's crystal clear till now? Thank you so much, Mr. Yashraj, Mr. Vatsal, Mr. Manan, Mr. Soham, Miss Amreen, Mr. Rithik, and everyone out there. Okay, so in the next session, we will go to the features, advantages, disadvantages of the loans and borrowings finance. Thank you so much. You may put your attendance over there in the chat box. That's it from my side for the session. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Sayonara. In the WhatsApp. कोई कोई लोगों के एनरोलमेंट नंबर तो देखो कितने होते हैं. देखो, ये कौन है? राहिल भाई साहब. कोई बात नहीं, तेरी उम्र है पगले,
कर ले गलती से मिस्टेक। May I leave first?